A very good morning to all of you. A very good morning to all of you. Welcome back. Let's resume our discussion on the Indian polity. And first of all, it's a auspicious day. So many congratulations to all of you. And I see a lot of doubts coming up. I'll answer all the doubts. Just be with me. So it's 11 o'clock and we are starting with the polity again. Polity is an interesting subject in the sense that it talks about how the political structure of any particular nation should be. And political structures we define. China has their own system, US has their own, we have our own. And everybody has unique elements to their structure which are reflective of their society, primarily society. We having a diverse society and we having in a way a very fractured society also in terms of the hierarchical caste system, we created a strong center to that effect. Some of you might be aware about how in Punjab these days there is again the resurgence of the Khalistani separatism, and some of you are again aware about the J&K militancy also, or you might be aware about how the insurgents in northeast, they have been creating a nuisance also, and this has been a continuous feature since the times of independence. A strong center is also justified on these basis that there are so many centrifugal tendencies. Centrifugal का मतलब होता है जो आपको तोड़ना चाह रही हैं. ऐसी टेंडेंसीज बहुत सारी हैं तो हमें सेंटर स्ट्रांग रखना पड़ेगा. हम जस्टिफाई कर देते हैं ऐसे. हो सकता है आज से 100 साल के बाद ये जस्टिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े और हम सेंटर को इतना स्ट्रांग ना रखें. हमारे पास लॉज हैं लाइक आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, विच गिव्स अ लॉट ऑफ पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस. ऐसी पावर्स इमरजेंसी सिचुएशंस में दी जाती हैं, बट आफ्सपा की इम्प्लीमेंटेशन पंजाब में भी हो चुकी है, J&K में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी. हम जस्टिफाई कर देते हैं ये सबको. क्यों? क्योंकि ऐसी टेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं. बट लॉन्ग टर्म में हम ये नहीं कह सकते कि हम इस तरीके के स्पेशल लॉज ऑपरेशन कर कर सप्रेस कर कर गवर्न कर लेंगे. नो, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन डेमोक्रेसी ही है. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एम्पावरमेंट ऑफ पीपल है. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को एग्जिस्टेंस में है. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टॉलरेशन और प्लूरलिज्म में है. तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं उस तरफ, एंड वी आर सोसाइटी जो ऐसे रह रही थी सिंस एंशिएंट टाइम्स. बट अभी के टाइम में कुछ डोमेस्टिक टेंडेंसीज हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के कारण प्रॉब्लम्स हैं. तो ये सबके कारण सेंटर को स्ट्रांग रखा गया है. तो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस को जस्टिफाई हम इस तरीके से करते हैं कि हमें नेशन बने रहना है, उसके लिए एक स्ट्रांग एक्टर की ज़रूरत है, एक स्ट्रांग एंटिटी की ज़रूरत है जो हमें बांध कर रखे. तो वो हमने सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है. अनफॉर्चुनेटली जब पावर आती है तो वो मिसयूज़ भी होती है, तो कई बार मिसयूज़ ऑफ पावर भी होता है. तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन डेमोक्रेसी में लाई करता है एट ऑल टाइम्स. ओके, फाइन. There are few doubts. We'll take up those doubts. Stay with me. We were discussing citizenship, right? We have discussed yesterday Citizenship Act of Amendment Act of 2019, whereby we have seen the following provisions. Illegal migrants who satisfy the 4 conditions, they will no longer be treated as illegal migrants, and as a result of which they will be able to get the citizenship easily. The period of naturalization also has been reduced for them. Period of naturalization is basically the time period which is needed for you to stay in India necessarily. If you remember citizenship by naturalization, there we have, I told you about what is naturalization. It is largely for foreign people, but the term naturalization can be used for registration also, in the sense that somebody is trying to be a part of India. They can be a part of India through citizenship by registration. They can be a part of India by citizenship through naturalization. That depends where you fall, in which category you fall. We have reduced the period of naturalization for them in the sense that they don't have to stay in India for 11 years, but they, even if they are staying in India for a period of 5 years, that also will do for them. That is something which is again a relaxation provided in the Citizenship Amendment Act.
And the last point which we discussed, we gave a cursory glance to that, was that the center has retained certain powers with respect to cancellation of OCI card of citizens. Now, today I'll discuss a little bit more about this. Stay with me. But first, there is a question for you. You may not tell the answer because others will take some time to answer. So you can just have a look at it. I'll give you 15 seconds and maybe you can think of the answer at your own end and then I'll tell the answer. The question is, consider the following statements with regard to Citizenship Amendment Act of 2019. Okay. Now I'll tell you the answer. First of all, the question is asking which of the following statements are incorrect. The first statement says this act dilutes the criteria for naturalization. Yes, we did. It has diluted the criteria for naturalization for all foreigners equally under the law. This is wrong because it is not for all foreigners. It is only for the 6 communities coming from 3 countries who have come before 31st December of 2014. So this statement is wrong. Second, the act also provides for cancellation of the OCI card. Yes, it provides for cancellation of OCI card status only for the violation of any of the constitutional provisions. Any of the constitutional provisions. This is also wrong. The correct answer is C. Why? Let's go back to that slide. Okay. First is this. The period of naturalization has been reduced from 11 years to 5 years for the above category of migrants. Not for everybody, only for the above category. Then second is, what are the grounds for cancelling OCI registration? Here we said, the amendment provides that the central government may cancel the registration of OCIs if the OCI has violated Citizenship Act or any other law notified by the central government. If the overseas citizen of India violates the Citizenship Act, not a constitutional provision, then the central government will retain the power to cancel the registration. That is what has been introduced. So it's a very factual question, although just to tell you how the questions can be asked. Okay. Now, let's quickly discuss a little bit more about OCI, PIO and NRI, which we discussed yesterday. Now, these 2 categories, they are non-citizens, I told you. OCI and PIO. PIO refers to persons of Indian origin and OCI refers to overseas citizen of India. ठीक है, ये दोनों कैटेगराइजेशंस है, डेजिग्नेशंस हैं. इनको डेजिग्नेट किया जाता है. कुछ इंडिविजुअल्स को कहा जाता है आप PIO हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को कहा जाता है आप OCI हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कार्ड भी दिया जाता था उनको. सेंट्रल गवर्नमेंट केम अप विद दिस स्कीम. बेसिकली आइडिया स्कीम का ये था, इंडियंस का जो इंडियंस किसी ना किसी जो इंडियन रह चुका है या जिसका कोई ना कोई नाता रहा है इंडिया के साथ, उसके लिए कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करना. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में इन दोनों को मर्ज कर दिया टुगेदर. अब ये 2 कैटेगरीज नहीं रह गई हैं, अब एक ही कैटेगरी है जिसे हम OCI कहते हैं. PIO को भी इसमें ही इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है. ठीक है, करने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं गवर्नमेंट ने, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं जिससे बेसिकली दी OCI है उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगी. कैसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कैसी रिलैक्सेशन है? फॉर एग्जांपल, दे डोंट नीड वीजा टू
travel to India. They can travel to India at any point of time. If somebody travels to India and they are not citizen of India, they have to get registered. They have to get themselves registered with the government authorities. पुलिस स्टेशन में भी उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है. इनके लिए रिलैक्सेशन है. They don't need to do something such kind of things. When it comes to owning property, owning businesses, इनको रिलैक्सेशंस है. They are in most cases they are treated at par with the citizen when it comes to doing economic activities. तो कोई भी economic activity करनी है, ownership of land है, different enterprises हैं, इनको अलाउ किया गया है चलाने के लिए, खोलने के लिए, उसका पार्ट बनने के लिए. हर किसी को अलाउ नहीं किया जाता है, नॉन सिटीजन को स्पेशली. ठीक है, तो इनको अलाउ किया गया है. बट क्या इनको राइट टू वोट दिया गया है? नो, राइट टू वोट नहीं दिया गया है. क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि वोटिंग का राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को होता है. ठीक है, तो राइट टू वोट इनको नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉन सिटीजन है. बाकी काफ़ी सारे राइट्स इनको एट पार विद सिटीजन्स दिए गए हैं, सो एज टू शो आर गुडविल टूवर्ड्स दीज पीपल बिकॉज दे हैव बीन at one point of time Indian or associated with India. Okay, so although अब ये चेंज हो गया है, बट जो पहले सिचुएशन थी उसमें ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था. PIO की डेफिनेशन है, OCI की डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है अलग अलग डेफिनेशन. मीन्स अ फॉरेन सिटीजन, PIO मीन्स अ फॉरेन सिटीजन, OCI ऑल्सो मीन्स अ फॉरेन नेशनल. ओके, a foreign citizen except a national of Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, China, Iran, Bhutan, Sri Lanka and Nepal, whose one of the parents, grandparents, great grandparents were born and were permanent resident of India, or who is a spouse of a citizen of India or a PIO, they all will be considered as a PIO. गवर्नमेंट ने ये डिफाइन कर दी कैटेगराइजेशन. बेनिफिट्स, दे डू नॉट रिक्वायर अ वीजा टू विजिट इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द PIO कार्ड. तो 15 साल तक वीजा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं PIO के लिए. यहां पे बात करते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए. ये भी फॉरेन नेशनल है. ये एलिजिबल थे इंडिया के सिटीजन बनने के लिए 26 जनवरी को 1950 को. दे वर एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या इंडिया के सिटीजन थे एट एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950 और बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट वाज पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15th August of 1947. दे आर एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज OCI. कौन? जो इस टाइम पे एलिजिबल था. When the constitution came, they were eligible. They were not citizens, they were eligible to become citizens. या आफ्टर 26 जनवरी कभी भी आप सिटीजन रहे हैं इंडिया के, या आप उस टेरिटरी को बिलोंग करते थे जो इंडिया का पार्ट है आफ्टर 15th August, तो भी आपको OCI कार्ड मिल सकता है. Minor children of such persons are also eligible for OCI. However, if the applicant had ever been a citizen of Pakistan or Bangladesh, they are not eligible to be a OCI. So Bangladesh and Pakistan are kept aside. They will not be given such kind of a relaxation. Okay. Now, some categorizations for PIO, some categorizations for OCI. Okay. When it comes to OCI, they are entitled to multi-purpose, multi-entry, lifelong visa. They were given visa for a period of 15 years. They are given visa for lifelong. Okay. Similarly, they are exempted from registration at the FRRO if the state does not exceed 180 days. 180 दिन के अंदर रहेंगे तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. यहां पर इनको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. यहां पर अगर 180 दिन से ज्यादा इंडिया में रहेंगे तो रजिस्टर करवाना है, कम दिन के लिए रहेंगे तो नहीं करवाना है. ठीक है. Then it says they enjoy parity with NRIs in economic, financial and educational benefits. यहां पर भी absolutely same है. They are also enjoying parity in terms of economic, financial and educational purposes. Okay. However, there is one small criteria which you need to remember. They don't have the right to acquire agriculture or plantation properties. Agriculture properties are considered to be sacrosanct. उनको हम जल्दी जल्दी किसी बाहर वाले को ऑक्यूपाई नहीं करने देते हैं. The reasons are historical.
So agriculture and plantation properties they cannot own, but otherwise different kinds of businesses can be owned, can be operated by them. Okay, fine. These are just, you don't have to remember all these differences, no need to remember all these differences. Just have a brief idea over what is a OCI and what is a PIO. Rather, this distinction was relevant till 2015. After 2015, they have together been merged, and now we have only one category, which is the OCI category, in which number of benefits which are very similar to this, they are provided. Okay, so just need to have some idea that okay, this is the idea, this is the case with respect to these categorizations. Okay, and NRI I have already discussed with you. They are nothing but they are citizens of India, not staying in India, and they have the voting rights also. Now when it comes to voting, the voting of NRIs has been a matter of great concern, primarily because we have a huge diaspora which is residing. Diaspora कौन होता है? Diaspora कोई भी इंसान जो इंडिया का सिटीजन है या इंडिया से ताल्लुक रखता है, उसको डायस्पोरा कहते हैं. वो इंडिया का सिटीजन अभी भी हो सकता है, वो पहले भी हो सकता है इंडिया का सिटीजन, सबको मिलाकर डायस्पोरा कहते हैं. तो कोई भी जो रिलेटेड टू इंडिया है, अगर तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो अपने घर पे पैसे भेजेगा, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं. अगर वो नहीं भी है इंडिया का सिटीजन, तो हो सकता है वो यूएसए में बैठकर इंडिया के इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा हो, इंडिया के यहाँ पे फैक्ट्री चला रहा हो, इंडिया के यहाँ पे कोई कंपनी चला रहा हो. सो दे ऑल आर पार्ट ऑफ डायस्पोरा ऑफ इंडिया. इनको डायस्पोरा ऑफ इंडिया कहते हैं. कोई अगर इंडियन सिटीजन वहाँ जाकर एजुकेशन ले रहा है, स्टूडेंट है, या कोई इंडिया का टूरिस्ट वहाँ पे जाकर 3-4 महीने 5 महीने के लिए रह रहा है, वो भी इंडियन डायस्पोरा का पार्ट है. ओके, एंड वी हैव अ ह्यूज डायस्पोरा विच इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जिनमें एनआरआईएस का रोल इंपॉर्टेंट है. Why? Because they are citizens of India, but they are not staying in India. They are staying outside India. Outside India, they are doing business. They are sending a lot of remittances to India, which is beneficial to me when it comes to my forex exchange. Forex exchange में मेरे काम आता है, मुझे डॉलर मिलते हैं, मुझे जो डॉलर मिलते हैं उससे मेरे लिए क्रूड ऑयल खरीदना आसान हो जाता है. मेरे लिए क्रूड ऑयल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रूड ऑयल इंडिया में नहीं है, तो मुझे इंपोर्ट करना है. इंपोर्ट करने के लिए आई नीड डॉलर्स. डॉलर्स कहाँ से मिलेंगे? वन सोर्सेस, NRIs will send the remittances, or diaspora will send the remittances, the better word. They will send the remittance. मनी और भी आएगी जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, आईटी प्रोडक्ट्स को. अगर इन्फोसिस, TCS, ये सब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं डेवलप्ड कंट्रीज के बीच या डेवलपिंग कंट्रीज के बीच, तो दे गेट डॉलर्स. तो वहाँ से भी हमें डॉलर मिल जाते हैं. तो डॉलर मुझे चाहिए क्योंकि मुझे मेरी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के ऊपर, सो आई नीड डॉलर्स. ठीक है, बट nevertheless they also have a important role to play. NRIs also feel connected to the country. So इनको वोटिंग की बात की जा रही थी. एक बहुत बड़ा इलेक्टोरेट भी है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी रेलिवेंट है कि NRIs उनको वोट देंगे. तो हम वोटिंग के बारे डिस्कस कर रहे थे इन दैट कॉन्टेक्स्ट, एंड वी हैव आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी को वोट देने का हक है. एडल्ट सफरेज की बात करता है, बट यू शुड बी 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव. 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, आप वोट दीजिए. हाउएवर, अगर कुछ पैरामीटर्स पर आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है तो आप वोट नहीं दे सकते. सम पैरामीटर्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ विच you can be disqualified from voting. Constitution writes about this. Okay, what are these parameters? If we see, there are a number of such parameters. One of them being non-residence. Non-residence एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है द राइट टू वोट. कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है आर्टिकल 326 के अंदर. 326 प्रोवाइड्स फॉर एडल्ट सफरेज एंड इट सेज non-residence, unsoundness of mind, criminal, corrupt or illegal practices. Criminal, corrupt or illegal practices along with non-residence. 4 criteria, 4 grounds are those on the basis of which are the grounds for not allowing a person to be registered as a voter. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नॉन रेजिडेंस एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेस पर आपको वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है. एंड एनआरआईज डिड नॉट एंजॉय दिस राइट प्राइमरली बिकॉज ऑफ द रीजन दैट दे वर नॉट रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. सिटीजन होने के बावजूद
रेजिडेंट नहीं थे। सिटीजन का मतलब आप पॉलिटिकल कम्युनिटी का पार्ट है, रेजिडेंट का मतलब आप वहां पर रह भी रहे हैं। रेजिडेंस होती है रहना। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ यू माइट हैव कम टू लेट्स से कैलकाटा फ्रॉम योर विलेजेस। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीज। देन योर रेजिडेंस इज कैलकाटा, then your residence is Calcutta. You are nevertheless citizen of India, but at that point of time your residence is Calcutta. Okay, an important thing here also, let me tell you, there is something called as domicile also. एक domicile भी होता है, एक residence होता है, एक domicile होता है, एक citizenship होती है। सिटीजनशिप तो ब्रॉडर आइडिया है। सिटीजनशिप कहता है कि आप एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, उसका पार्ट है, और आपको उसके तहत कुछ अधिकार मिलेंगे और कुछ आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो आप तो सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए, वहां पे सिटीजनशिप तो खत्म हो गई। अब जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है वो इंडिया के अंदर भी रह सकता है, इंडिया के बाहर भी रह सकता है। इफ दे स्टे इनसाइड इंडिया इट इज कॉल्ड दैट दे आर रेजिडेंट्स ऑल्सो। इफ दे से स्टे आउटसाइड इंडिया देन वी से दे आर नॉन रेजिडेंट्स। बाहर रह रहे हैं तो नॉन रेजिडेंट्स। अब अगर आप एक जगह पर रहते हैं, वहां पर आपकी स्कूलिंग भी हो रही है, वहां पर आपकी इन अ वे एक परमानेंट रेजिडेंस है, जो कि फॉर ऑल ऑफ यू हैव बीन द एरिया जहां पर आपने स्कूलिंग की, जहां पर आपने लेट से कॉलेज किया, मे बी सेम हो सकता है, मे बी अलग हो सकता है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मान लेते हैं सेम है। आप जहां पर पैदा हुए, आपने वहां पर स्कूलिंग की, आपने वहां पर कॉलेज भी किया, वो आपकी रेजिडेंस सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसे हम कहते हैं डोमिसाइल। Domicile is nothing but your residence since a long period of time. उसे हम डोमिसाइल बोल देते हैं। अगर आप अब कैलकाटा में आ गए हैं पढ़ाई करने के लिए, तो कैलकाटा आपकी डोमिसाइल नहीं है, कैलकाटा आपकी रेजिडेंस है। डोमिसाइल आपकी जहां से आए हैं, जहां से स्कूलिंग हुई है, जहां पे लार्जर पार्ट ऑफ योर लाइफ था रहा है, वहां पे हम उसे डोमिसाइल कहते हैं। अगर आप कैलकाटा में आकर यहाँ पर आकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, यहाँ पर आकर बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, आप कहते हैं यहीं पर हमें रहना है अब आगे के लिए भी, तो आपका कैलकाटा डोमिसाइल बन सकता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ इंटेंट टू स्टे एट दैट प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। If you have stayed at a particular place for a long period of time, that is your domicile. If you are staying at a particular place for a short period of time, that is your residence. Or I can make it more simpler for you, your permanent residence becomes your domicile. फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखते हैं ना परमानेंट एड्रेस, एक होता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब जहां आप अभी रह रहे हैं वो आपका रेजिडेंस है। परमानेंट एड्रेस आपका डोमिसाइल होता है। ठीक है, डोमिसाइल चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज हो सकता, बट एक इंटेंट होना चाहिए किसी जगह पर लॉन्ग टाइम रहने का। तो कैलकाटा में अगर आए, प्रॉपर्टी खरीदी, बिजनेस डाला, तो पता लग गया कि ये इंसान यहाँ रहने वाला है, तो उससे वहां का डोमिसाइल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब नॉन रेजिडेंस जो था वो एक ग्राउंड था वोटिंग रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, बट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज रियलाइज्ड कि बहुत सारे लोग बाहर हैं एंड दे ऑल्सो वांट टू बी पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो 2010 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट है जो इंपॉर्टेंट एक्ट है जो गवर्न करता है इलेक्शंस को। ये आरपीए एक्ट वाज अमेंडेड एंड नॉन रेजिडेंस को हटा दिया गया था एज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन, एंड 2010 के बाद एनआरआईज को भी वोटिंग का अधिकार मिल गया। बट एक क्राइटेरिया था कि एनआरआईज को इंडिया आकर वोटिंग करनी पड़ेगी। दे कैन नॉट वोट जहां पर भी वो अभी हैं, तो आज भी वो नहीं कर सकते हैं। उन्हें अगर वोट करना है तो जिस कंस्टिट्यूएंसी में वो रजिस्टर्ड है एज अ वोटर, वो वहां पर आकर वोट कर सकते हैं आज के टाइम भी। अब बात चल रही थी काफी टाइम से कि एनआरआईज के लिए मुश्किल है टू कम टू इंडिया एंड वोट, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव देयर businesses, they have their service going outside of India, so it is not possible for them. And क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है जिससे कि कुछ इलेक्टोरल आउटकम्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, एंड अदरवाइज ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड गिव देम दिस काइंड ऑफ अ राइट। सो व्हाट वी हैव डन इज वी आर कंसिडरिंग गिविंग देम certain relaxations like proxy vote and postal ballots. प्रॉक्सी वोट एंड पोस्टल बैलेट्स। देखिए आज के टाइम में इंडिया में वोटिंग कैसे होती है। आज के टाइम में इंडिया में वोटिंग होती है या तो यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट,
ओके, विच इज द केस विद मोस्ट ऑफ अस। आप जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, वी ऑल डू दिस। वी हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट एंड वी गो एंड वी कास्ट आवर वोट। सेकेंड वे ऑफ कास्टिंग अ वोट इज पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट मीन्स रिटर्निंग ऑफिसर को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिस पे लिखा होता है कि ये हमारी चॉइस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट भेजता है कुछ लोगों को जो नहीं आ पाए, वो लोग अपनी चॉइस फिल करके रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो एक एरिया में, एक कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करवाता है। यूजुअली अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ अ लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। तो वो ऑफिसर है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ बोलते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो डॉक्यूमेंट आ जाता है और उस पर वो उनकी चॉइस देख देते हैं। इसे हम कहते हैं पोस्टल बैलेट। पोस्ट के थ्रू बैलेट आया। ये किनको अवेलेबल होता है? आर्म्ड फोर्सेस के लोग जो सियाचिन ग्लेशियर पर हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में हैं पोस्टेड, वो वोट करने के लिए नहीं आ सकते। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, ONGC के एम्प्लॉयज़, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़, जो कि अपनी जगह से कहीं और जाकर काम कर रहे हैं और काम में व्यस्त हैं, तो वो नहीं आ सकते हैं। उनके लिए भी ऐसी फैसिलिटी होती है पोस्टल बैलेट्स की। ठीक है। सो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर आउट ऑन डेपुटेशन, इवन द इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिशियल जो इंडिया में नहीं है, उनको वोट करना है, उनके लिए भी पोस्टल बैलेट्स की फैसिलिटी होती है। या एक और फैसिलिटी होती है उनके लिए जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग वही है जो आपकी प्रॉक्सी अटेंडेंस होती है। कोई आपके बेसिस पर अटेंडेंस लगा देता था तो आप कहते हैं प्रॉक्सी लग गई। सेम इज द केस, somebody else is going to vote on your behalf. Fine. Now, this is available to NRIs. The government is considering of this. The Election Commission is considering of this. इसके लिए एक बिल भी आया था, वो लैप्स हो गया 2019 में। सरकार चाह रही है कि उनको ये फैसिलिटी मिल जाए, बट इस फैसिलिटी के लिए इलेक्शन कमीशन को गो अहेड देना पड़ेगा, बिकॉज सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं वोटिंग पर्पस जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोटो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो फेयरनेस एंड फ्रीनेस ऑफ द इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर वो मेंटेन रहती है तो इलेक्शन कमीशन करने देगा, नहीं तो इलेक्शन कमीशन नहीं करने देगा, और अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन रखता है अपने पास। इलेक्शन कमीशन ने सरकार को कहा है दैट वी आर रेडी फॉर दिस, वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, वी हैव सीन द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस एंड वी कैन इंश्योर द प्रोसेस रिमेन्स सिक्योर। बट अभी भी हुआ नहीं है। रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक कॉमेंट भी दिया था। वो अफ्रीका में गए हुए थे, अफ्रीका में जाकर उन्होंने एक कमेंट दिया था दैट वी आर रेडी एंड वी आर कंसिडरिंग दिस थिंग। तो हो सकता है आने वाले 18th लोकसभा इलेक्शंस में जो नेक्स्ट ईयर होंगे उसमें शायद ये फैसिलिटी मिल जाए। अभी नहीं मिली है, अभी सिर्फ ये वैलिड है, ये नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है आगे जाकर बन जाए, यू विल हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दिस कि क्या एनआरआईज को ये फैसिलिटी मिल गई है या नहीं मिली है। एज ऑफ नाउ नहीं मिली है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है which we need to take care of. Now, let's move forward. Today we'll start with the Election Commission of India, but let me quickly finish with the previous topic. I'll be sharing the PPTs with you, okay? Today itself I'll give it to the team. Okay. Now, a brief discussion on NRC and NPR. What is NRC? What is NPR? Very easy. NRC and NPR. National Population Register, National Register for Citizens. Okay. What is the difference between this? National Population Register and National Register for Citizens. डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, क्या होता है? पहला डिफरेंस ये है, एनपीआर पॉपुलेशन की बात करता है और एनआरसी सिटीजन्स की बात करता है। पॉपुलेशन विल इंक्लूड सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स, दोनों इंक्लूडेड है पॉपुलेशन में। तो कोई इंडिया में आ रहा है, टूरिस्ट है, कोई इंडिया में फॉरेन डिप्लोमेट आया है, वो रह रहा है, किसी भी टाइप का नॉन सिटीजन अगर इंडिया में किसी भी टाइम के लिए रह रहा है
ऑब्वियसली लीगल पर्पस ही चाह रहे हैं हम, बट इवन अगर इलीगल रह रहा है तो एनपीआर में नहीं पता लगेगा। एनपीआर की एक्सरसाइज जो है वो ये कहती है कि हमें एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। We need to prepare a document which will consist of the names and the details of the entire population of India. That population may consist of non-citizens also. Okay. The only criteria in NPR is that you should be a resident in India. आप इंडिया में रह रहे हैं तो गवर्नमेंट आपकी डिटेल्स चाहती है। डिटेल्स ऐसा नहीं कि आपकी प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं, नो, वी वांट बेयर मिनिमम डिटेल्स जिससे गवर्नमेंट को पता हो कौन कौन रहता है इंडिया में। उसे कहते हैं NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। हम ऐसा रजिस्टर 2010 में बना चुके हैं, 2015 में बना चुके हैं, 2020 में हमने बनाना था, बिकॉज ऑफ कोविड वी कुड नॉट मेक इट, तो ये होल्ड पर है, ये बनाना है अभी। नाउ इसमें होगा क्या, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल विल कम टू योर हाउस, दे विल आस्क यू सर्टेन डिटेल्स। व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स? दे आर गोइंग टू आस्क यू सम बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स। What are biometric and demographic details? ये आपसे बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट करेंगे। बायोमेट्रिक, यू अंडरस्टैंड, your fingerprints, your retina, all this can be collected now as a part of Aadhaar also, and already the government has it, but they may come and again ask you for the same. They'll ask you certain demographic data also. Demographic data involves what is your name, what is your father's name, what is your age, okay, these kinds of data they'll take from you. There are 15 categories of demographic data ranging from name, place of birth to education, beg your pardon, to education and occupation. तो आपकी occupation क्या है, आपकी education क्या है, name क्या है, place of birth क्या है, ऐसी डिटेल्स आपसे लेंगे। Objective of NPR क्या है? लास्ट लाइन कहती है is to create a comprehensive database of usual residents. First of all database है, नॉट अ प्रॉब्लम। यूजुअल रेजिडेंट्स, कोई भी जो रह रहा है बस इन द कंट्री। नो डॉक्यूमेंट विल बी कलेक्टेड ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। दिस इज इंपॉर्टेंट, आई टेल यू हाउ। एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या कहती है। एनपीआर इज अ रजिस्टर कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ पर्संस यूजुअली रिजाइडिंग इन अ विलेज और अ रूरल एरिया और अ टाउन और अ वार्ड और अ डिमार्केटेड एरिया विद इन अ वार्ड और अ अर्बन एरिया। तो कहने का मतलब है ये सब कैटेगराइजेशन है डिफरेंट टाइप्स की। तो आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में हम किस तरीके से एरियाज को डिफाइन करते हैं। वार्ड है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, ट्रांजिशनल एरिया, स्मॉल अर्बन एरिया, बिग अर्बन एरिया, ये सब एरियाज होते हैं, ठीक है। कोई भी जो यहाँ पे रह रहा है उसका रजिस्टर है। नाउ डॉक्यूमेंट्स, आपसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आएगा, आपके कुछ डिटेल्स कलेक्ट करेगा और चला जाएगा। आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा कि फर्निश कीजिए, आपसे वर्बली बस कहा जाएगा अपना नाम बता दीजिए, प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए एंड ऐसी डिटेल्स बता दीजिए। आप बताएंगे, वो रजिस्टर में लिखकर चले जाएंगे। एनपीआर की एक्सरसाइज सिर्फ इतनी सी है। एनपीआर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सिंपली वी वांट टू नो दैट हु आर people residing in India, and there is no problem in doing such exercise. There is no controversy with respect to that, because every government should know who are the people residing in the country. Now comes the next aspect of NRC. NRC will be a document which will be similar to NPR, but it will consist only of the citizens. And first the NPR exercise will be done, in which no document will be collected. But when the NRC exercise will be done after the NPR exercise, the official, whoever visits your place, he will be again asking you few questions, and now he will ask you to show documents. If you are unable to show documents, then what will happen is they might consider you as a doubtful category. कहते हैं कि नाम के आगे डी लगा दिया जाएगा, डाउटफुल कैटेगरी, क्योंकि आपके या डॉक्यूमेंट्स शो नहीं कर पाए, या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने शो किए अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए वो इनसफिशिएंट थे इन द आइज ऑफ द पर्सन हु केम टू विजिट यू। अब इन द आइज ऑफ पर्सन का मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्टिविटी है। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आएगा आपके घर, उन्हें डायरेक्शंस होगी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, उसमें ये चीज़ें देख के आएगा। अगर उन्हें लगा कि कुछ डाउटफुल है
क्योंकि हो भी सकता है, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स भी तो रह रहे हैं। एनपीआर में इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता लगेगा। एनआरसी में अब हम डिसाइड कर रहे हैं कौन सिटीजन है कौन नहीं है। तो जो नॉन सिटीजन है और जो लीगल माइग्रेंट है, कोई आया हुआ है इंडिया में, एम्बेसडर है, कोई टूरिस्ट आया है, या कोई इन जनरल इंडिया में रह रहा है बट लीगली रह रहा है, दैट मीन्स उनको उतने टाइम का वीज़ा मिला हुआ है इंडिया में रहने का, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं फर्निश कर पा रहा जिससे पता लगे कि वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, या वो बाहर से आए हुए सिटीजन हैं बट वो लीगल सिटीजन है, ये भी नहीं वो प्रूव कर पा रहे, तो डाउटफुल का उनके आगे वो लगा दिया जाएगा। एंड ऐसे लोगों को उसके बाद एक ट्राइब्यूनल में बुलाया जाएगा जहां पे उनको प्रूव करनी होगी अपनी सिटीजनशिप। अगर वो सिटीजनशिप नहीं प्रूव कर पाए, देन दे विल बी नॉट कंसिडर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल माइग्रेंट्स। एंड कंसिडरेशन के बाद उनको या तो डिपोर्ट किया जाएगा या फिर डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, जैसा कि आसाम के केस में हुआ। दिस वी आर टॉकिंग ऑन द एंटायर इंडिया लेवल। जो आसाम में हुआ सेम पूरे के पूरे इंडिया लेवल पर होगा। दिस एनआरसी एक्सरसाइज विच विल बी कंडक्टेड फॉर knowing the citizens of the India, this exercise, particular exercise, will ask you to furnish documents, and this is where the things get tricky, because just like in Assam, there may be a huge population which is not able to provide documents, and this is where things will get ugly. तो ये डर है, ये अभी एनआरसी हुआ नहीं है। एनआरसी की बात की गई थी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, कि वो भी आया है, अब एनआरसी भी करेंगे। येस्टरडे आई टोल्ड यू द एंटायर पिक्चर कि इन दोनों को मिला के कहा जा रहा था कि टारगेटिंग हो रही है। तो यहाँ पे एनआरसी भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है, करवाना गलत नहीं है, बट एक रिजिडिटी विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स या फिर क्या लीगल प्रोसीजर अपनाने वाली हैं ट्राइब्यूनल्स विद रिस्पेक्ट टू हाउ दे डिसाइड ऑन द सिटीजनशिप और द नॉन सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन, ये बहुत क्रूशल होने वाला है, क्योंकि इसके बेसिस पर हो सकता है कुछ जेन्युइन लोगों की सिटीजनशिप भी चली जाए, जैसा आसाम के केस में कहने में आया। तो ये एक्सरसाइज हमें बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एवरी कंट्री शुड हैव अ रजिस्टर of its own citizens and also should have a register of the entire population residing in the country. There is nothing wrong. Okay. So this was a little bit about NPR and NRC. जब ये सब situations relevant थी 2020 के आसपास, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी। तो NPR के ऊपर भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि एनपीआर भी जो है हो सकता है लोगों को डिसफ्रेंचाइज कर दे। तो गवर्नमेंट ने कहा एनपीआर क्यों करेगा, एनपीआर पहले 2 बार हो चुका है इंडिया में ऑलरेडी, 2010 और 2015 में, दोबारा 2020 में करवाना है, बिकॉज एवरी 5 ईयर वी डू इट, एंड यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा जाएगा आपसे। तो एनपीआर की एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। एनआरसी की एक्सरसाइज में, बिकॉज देयर विल बी अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस in which you will be given the certification of whether you are a citizen or not, then this can be a little bit problematic. But because problematic है तो हम करेंगे नहीं, ये भी गलत अप्रोच है। We should do it because we should know the citizens who are staying in India. Okay, fine. ठीक है, आगे चलते हैं। It says NRC was published only once, एक ही बार हुआ है आज तक, 1951 में, उसके बाद आसाम में हुआ है जो 2017 में हुआ है। नाउ वी डोंट नो व्हेन इट विल हैपन, बिकॉज ये 1920 के बाद, 2019-2020 के बाद ये इशू एकदम बैक साइड पर चला गया है, और अभी दोबारा से दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट डूइंग इट। सो बिकॉज द इफेक्ट्स ऑफ कोरोना आर स्टिल टू die down, so probably in a year or 2, if everything goes well, maybe we'll do the NPR, and once we do the NPR, then will come the NRC exercise also. You just need to understand, okay, what are these exercises. So tomorrow, you never know when this will be news next, tomorrow, day after tomorrow, next year, day after, maybe 2 years down the line, we don't know. Okay, one more question for you, and then we'll start the Election Commission of India topic for you. Constitutional bodies. One last question for you. Which provision of the Constitution empowers the Parliament to pass law to regulate the acquisition and termination of citizenship subsequent to the commencement of Constitution? Very easy question.
Okay, so the answer is Article 11. We have written this. As per Article 11, Constitution is empowering the Parliament, and then Parliament passed the Citizenship Act of 1955. This deals with acquisition and termination of citizenship. Okay, fine. Now we have to do this. This was left, loss of citizenship. Then I'll take the doubts. Then we'll start the Election Commission. Loss of citizenship is very easy. There are three ways by which citizenship can be lost. First is renunciation. Indian citizen of full age and capacity can renounce his Indian citizenship by making a declaration to that effect and having it registered. That simply means मैं अपने पूरे होशो हवास में बालिक हूँ, 18 साल से ज़्यादा हूँ, फुल कैपेसिटी, दैट मीन्स आई एम नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल नहीं हूँ, होशो हवास में पागल नहीं हूँ, ये कहता हूँ कि मैं भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, तो इंडियन सिटीजनशिप रेनाउंस हो जाएगी. ही और शी विल नो लॉन्गर बी अ सिटीजन. तो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी इंडियन सिटीजन के पास ये पूरा का पूरा अधिकार है कि वो अपनी सिटीजनशिप अपनी विल पर यू कैन से रेनाउंस कर सकते हैं. टर्मिनेट गलत वर्ड होगा, रेनाउंस कर सकते हैं. रेनाउंस का मतलब है वापस दे दी. ठीक है. नाउ termination. Second way is termination. If a citizen of India voluntarily acquires the citizenship of another country, he shall cease to be a citizen of India. आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड ही नहीं है डुअल सिटीजनशिप. तो अगर आपने वॉलंटरीली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली और उससे पहले आप इंडियन सिटीजन थे, तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी. इसे कहते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय टर्मिनेशन. अगेन आई विल रीड. इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया voluntarily acquires the citizenship of another country, then he shall cease to be a citizen of India. वो नहीं रहेंगे. ठीक है. अब एक नोट है इंपॉर्टेंट. The above declaration may be withheld from registration by the government during the times of war. आपने जो declaration दी है renouncing your citizenship, ऐसी declaration सरकार मानने से मना कर सकती है इफ देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन. वॉर के टाइम पर you may not be allowed to give up your citizenship and acquire somebody else's citizenship by the government, but only during the war. जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद आपसे कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है. सो इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, जस्ट रिमेंबर इट. थर्ड इज डेप्रिवेशन. आपकी सिटीजनशिप आपसे छीनी जा सकती है सरकार के द्वारा अगर आपने कुछ एक्टिविटीज की हैं. कौन सी एक्टिविटीज हैं वो? लेट्स सी. डेप्रिवेशन इज कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इन विच दे मे बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिटीजनशिप बाय द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सरकार ने कहा आपकी सिटीजनशिप छीन ली. क्यों? बिकॉज आपने सिटीजनशिप ली थी बाय द मीन्स ऑफ फ्रॉड या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट. सिंपल मीनिंग है आपने अपनी सिटीजनशिप के टाइम पर कुछ झूठ बोला है, कुछ फ्रॉड किया है और वो बाद में पता चल गया तो आपसे आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी. पहला ग्राउंड. सेकंड, अगर आपने डिसलॉयल्टी शो की है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नो, अब ये डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, बट प्राइमरली मतलब ये है दैट यू आर हेल्पिंग सम अदर कंट्री अगेंस्ट इंडिया. ठीक है. तो यहां पर आप डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर कर सकते हैं. डिसलॉयल्टी इवन ये भी हो सकती है कि आप अपनी ही कंट्री में अपनी ही सरकार के अगेंस्ट, अपने ही लोगों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं. कैन बी कॉल्ड एज डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस बेसिस पर भी आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है आपसे. ठीक है. थर्ड इज द सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर. तो अगर आपने अनलॉफुली, बिना सरकार की रजामंदी के कम्युनिकेट किया है किसके साथ? एनिमी के साथ ड्यूरिंग द वॉर. कंसिडर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल
आर्मी ऑफिशियल, इफ दे डू दिस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर, देन इस टाइम पे हम कहते हैं दिस बिकम्स अ ग्राउंड फॉर योर डिस्क्वालिफिकेशन एज अ पर्सन ऑफ इंडियन, एज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू इंडिया। एनिमी के साथ ड्यूरिंग अ वॉर, आपने एनिमी के लिए, आप एनिमी के स्पाई बन गए, आपने एनिमी को इंफॉर्मेशन दे दी, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, छीन ली जाएगी। द सिटीजन हैज within 5 years after registration or naturalization been imprisoned in any country for 2 years। 5 साल अभी हुए नहीं हैं आपकी सिटीजनशिप मिले, आपने सिटीजनशिप ली कैसे, रजिस्ट्रेशन से या नेचुरलाइजेशन से, आपने अप्लाई किया, आपको सिटीजनशिप मिल गई। उसके 5 साल के बीच में अगर आप किसी कंट्री में 2 साल के लिए कैद हो गए हैं या ज़्यादा, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तो भी आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। The citizen has within 5 years after registration or naturalization been imprisoned in any country for 2 years। And last is citizen has been ordinarily resident out of India for 7 years continuously। 7 साल से आप इंडिया में आए नहीं हैं, आप इंडिया में रह नहीं रहे हैं, ये भी एक ग्राउंड है जिससे कि आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी आपसे। These all are grounds whereby the central government will take away your citizenship if any of this 1 2 3 4 5 parameters are held to be true। It is called as loss of citizenship by deprivation। loss of citizenship by deprivation, तो ये 3 तरीके हैं जिससे डिप्राइव भी किया जा सकता है आपको सिटीजनशिप के। ये है हमारी ग्राउंड्स, हमने ये कवर कर लिया था कल, रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन हमने आज कवर कर लिया। सो वेरी इजी, इसमें ऐसा कुछ एनालिटिकल नहीं है, फैक्चुअल है, यू विल हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा हमें। चलिए, दिस इज सिटीजनशिप, लेट मी टेक द डाउट्स नाउ एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, we'll do these bodies. First, let me take the doubts. Doubt is, Bidisha is asking, don't you think that NPR and NRC empowers the official doing survey humongously powerful? Yes, and this might lead to huge amount of corruption. Yes, so what? The question is, NPR and NRC will empower the official doing the survey. They can empower these officials who will come because they will have the authority to mark against your name whether you are doubtful or not. Not primarily NPR, but yes, NPR also, but to a greater extent NRC. But they will have some power, but you cannot always consider that this will be problematic. Why? Because at a later stage in the tribunal you will be asked to present the documents, and thereby if any kind of a misgiving happens at the level of the person who is coming to collect your information, then that can be taken care of later on. But yes, if you get into some kind of a nexus with the person who is doing the survey, then even illegal migrants may go undetected. So that is definitely a problem, and that is where this is something which is which we cannot actually ensure. Dalai Lama is considered in which category? Biswajit, Dalai Lama is a refugee. Refugees are not citizens. Refugees may be given citizenship at one point or the other. Refugees are those people who come and take refuge. For example, Dalai Lama came to India to take refuge because his life was in danger in Tibet in 1959. Just like Rohingyas came to take refuge in Bangladesh and in India because their life is in danger in Myanmar. So refugees are a separate category who may or may not be provided citizenship. A refugee may be provided citizenship if they have been living for a long period of time and they apply for citizenship by naturalization. So at that point of time, refugees can also be given the citizenship, not a problem. Kriti is asking, when a person is declared a fugitive, does he lose his citizenship? No. Braja is saying, sir, if you possibly please share your PPT. Absolutely, I'll share it with you. I'll tell you
a Telegram handle also. You can get in touch with me there also. Not a problem. Okay, Anish is also saying the same. PDF is not provided. I'll ensure that you get it today itself. Okay. Next doubt is, sir, in case of parliamentary democracy, Subhashiri is asking, sir, in case of parliamentary democracy, is like incorporate every ideas and ideals in a possible manner. But when the majoritarian authority comes, this incorporation becomes skewed. But majority has its pros also. Then which manner the balanced situation can be achieved? Okay. If I am correct in understanding your question, the question is probably that parliamentary democracy incorporates the views and the opinions and the representation of a large amount of people. And if this large amount of people belong to a particular community, let's say they are majority, then the majority comes and occupies seats in the parliament and basically runs the country. In this situation, it can be problematic also. What the question is asked is, देखिए, Lok Sabha has 543 seats. Who makes the government in India? Whoever gets more than 272 seats. You get 272 seats or more, you can form the government. Whether one political party will get this seat or multiple parties will come together to reach this number, that depends on case to case basis. But let's assume that in this Lok Sabha, 543 seats are there, and in this 543 seats, let's say as of now, the situation which exists as of now, 303 seats are with BJP. So BJP has already crossed the 272 mark. That means BJP is in majority. That means BJP will form the government. Now BJP can have more partners also, like Shiv Sena. They might not have any other partner. They can alone form the government also. So this political party BJP has majority seats in the Lok Sabha. This majority seats puts the BJP in the driving seat. Driving seat means they are the ones who are running the country. They are the ones basically who are the executive. Because in a parliamentary democracy, from legislature, executive is chosen. So they are the executive also. Now this executive which is running the country and the parliament has a majority of a single political party. And this is majority. This results into something called as majoritarianism. Majoritarianism is a natural consequence. होगा ही होगा ये मेजॉरिटेरियनिज्म अगर किसी भी सोसाइटी में एक पर्टिकुलर मेजर कम्युनिटी है. जैसे इंडिया में अगर मेजर कम्युनिटी हिंदूज हैं तो यहाँ पर मेजॉरिटी रूल आने की पॉसिबिलिटी होगी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में. अब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो हो सकता है इस मेजॉरिटी की टिरनी भी हो जाए, ये मेजॉरिटी ऑप्रेसिव हो जाए, ये मेजॉरिटी ऐसे लॉ पास कर दे या ये मेजॉरिटी ऐसी सरकार चलानी स्टार्ट कर दे जो कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को बेनिफिट करे. हो सकता है डेमोक्रेसी में, हो सकता है, बिकॉज डेमोक्रेसी एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकल फॉर्म नंबर्स का गेम है. 272 से ज़्यादा लाओगे तो सरकार बना लोगे. बहुत 303 है, पार्लियामेंट में भी आप ही का दबदबा है, दोनों चीज़ें आपके पास है, तो मेजॉरिटी का रूल हो जाता है यहाँ पर. ये अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है डेमोक्रेसी की, अनफॉर्चुनेट है एफपीटीपी की डेवलपमेंट, बट दिस इज हाउ इट इज. इसको काउंटर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 29 एंड 30 भी निकाले हैं. इसको काउंटर करने के लिए रूल ऑफ लॉ की प्रोविजन है. इसको काउंटर करने के लिए जुडिशरी के पास पावर्स है, ताकि मेजॉरिटी जो कि आती है पार्लियामेंट में वो अपनी अकॉर्डिंग ना चलाने लग जाए देश. इसीलिए कहा जाता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो लेजिस्लेचर है, ये बाउंड है. बाउंड बाय हु? द कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा ये है, सभी के सभी हर अथॉरिटी को बाइंड कर दिया इस कॉन्स्टिट्यूशन ने. नहीं जा सकते हैं आप. कोई भी अथॉरिटी अपनी डोमेन से बाहर जैसे ही जाएगी या कोई भी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर काम करने जाएगी तो जुडिशरी आकर उसे रोक देगी, इंक्लूडिंग जुडिशरी.
अब वो बात अलग है कि जुडिशरी को चेक करने वाला कोई नहीं है, बट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर अगर ये काम करते हैं तो जुडिशरी को यही पावर दी गई है कि यू आर द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू आर द गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट। गार्डियन कौन होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर काम नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है एग्जीक्यूटिव को ऐसे चलना है, लेजिस्लेचर को ऐसे चलना है, अगर बाहर गए जुडिशरी आकर रोक देगा। तो जैसे ही पार्लियामेंट में मेजॉरिटी किसी की आती है या कोई सरकार बनाता है, दे आर ऑल्सो बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये अच्छी चीज है, जुडिशरी इंश्योर करती है। इसके लिए हमने रूल ऑफ लॉ बनाया है, जो सबके लिए रूल ऑफ लॉ है, मोदी जी के लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए रूल ऑफ लॉ है। अब वो बात और है कि प्रैक्टिकल टर्म्स में हम देखते हैं कई बार रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है या उसे स्कर्ट कर दिया जाता है, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, बट एकेडमिकली ये हमने प्रोवाइड किया है। इस चीज का भी हल निकाला है कि अगर कोई मेजॉरिटी में आ गया, मेजॉरिटेरियन सरकार बन गई, तो प्रॉब्लमेटिक है। हमने उसके अलावा आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 भी दिया, जिससे हमने कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। आर्टिकल 14 भी है, आर्टिकल 15 भी है। ये कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ होगा। इन सबको अगर टोटलिटी में देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं मेजॉरिटेरियनिज्म को भी रोकने की कोशिश करेंगे। हो कितना होगा या नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एकेडमिकली हम ये कोशिश तो करते हैं और ये कोशिश कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। तो अगर यहाँ पूरा का पूरा पार्लियामेंट एक मेजॉरिटी के पास है, उससे मेजॉरिटेरियनिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। मेजॉरिटेरियनिज्म इज नथिंग बट रनिंग एज पर द विल ऑफ मेजॉरिटी। ना मेजॉरिटी का विल जरूरी है, बट माइनॉरिटी का विल उतना ही जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में। एंड रादर काफी सारे लोगों के अकॉर्डिंग असली टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी तब होता है जब आपकी माइनॉरिटीज सिक्योर फील करती हैं। अंबेडकर was of this view that the real test of democracy is when your minorities are secure. तो 29 and 30 आर्टिकल प्राइमरली माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया, अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकल डोमेन में चीजें थोड़ा अलग भी फंक्शन करती हैं। वो इसलिए करती हैं क्योंकि सोसाइटी अभी, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ है, सोसाइटी यहाँ है, सोसाइटी हैज टू कैच अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन काफी ऐसी बातें करता है जिसके लिए सोसाइटी अभी तैयार नहीं है या एक ग्रेजुअल प्रोसेस में है सोसाइटी एज ऑफ नाउ अभी भी। फायदा क्या होता है मेजॉरिटी गवर्नमेंट का कि आपको टेंशन नहीं है कि कोई आपकी सरकार गिरा देगा, तो आपके बिल्स पास होंगे, लॉज बनेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी गवर्नेंस में, जिस कारण से काम ज्यादा होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर मेजॉरिटी की सरकार हो। ये फायदे भी है, ठीक है। नुकसान आपको बता दिए मैंने, ओके। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज लेफ्ट इज, और क्या डाउट आ रहा है? अरे बाप रे बाप, हम डाउट्स ही करते रह जाएंगे, पढ़ाई भी करनी है हमें। चलिए फटाफट करते हैं। If an Indian citizen lost all their documents due to flood or other calamities, can't procure their documents, what will happen? See, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं भी मिल रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कुछ और डॉक्यूमेंट्स शो करने की, जिससे पता लग जाए कि आप यहीं पर रह रहे हैं, काफ़ी समय से रह रहे हैं, आपका काम है यहाँ पर। अगर फिर भी नहीं प्रोक्योर कर पाते तो ट्रिब्यूनल डिसीजन लेता है और मोस्ट केसेस में आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है इलीगल माइग्रेंट। As the time is not much left right now, please tell, should we read PDF plus notes or books also? Okay, those who are preparing for 2023, they don't need to read books now. You don't have the luxury to read books. Those who are preparing for 2024 and onwards, they can read books. So those who are going for 2023 only, you guys should be, just stick to notes, stick to PDF, stick to write all these things which are being discussed in the class, stick to only these things, and more importantly, if you're giving tests, all those things should be done. Don't worry, there will be a lot of things which you don't know. You are not supposed to know everything. All you are supposed to do is mark the correct answer in PT. That means reject those which are logically not correct and reject those which you know are factually not correct. सब कुछ फैक्चुअली याद नहीं होगा, लॉजिकली भी कुछ कंक्लूजन्स निकालनी पड़ेंगी,
तो लॉजिकली से निकाल के कुछ क्वेश्चंस होंगे, फैक्चुअल कुछ डिटेल्स आएंगी, वो क्वेश्चंस होंगे, और कुछ क्वेश्चन छोड़ के आएंगे हम। तो टेंशन नहीं लेनी है, बार बार पढ़ो, बट पीडीएफ, नोट्स एंड मे बी टेस्ट्स मोर देन सफिशिएंट। बुक्स एज ऑफ नाउ मत पढ़िए क्योंकि आपके पास टाइम कम है। Sir, is the concept of free Tibet a concept of a nation or nation state? No. Vidisha, when they are asked for a free Tibet, they are asking for a state also. They are asking for a territory also. So it's a concept of nation state. ठीक है, अभी वो जो तिब्बतियंस हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, रिफ्यूजीज हैं, दे आर आस्किंग तिब्बत बैक। तो वो टेरिटरी भी चाहते हैं और उस टेरिटरी में वो लोग रहेंगे जिनका आपस में भाईचारा है, आपस में ब्रदरहुड है। तो वो पूरा का पूरा नेशन स्टेट का ही कॉन्सेप्ट है, बट उसमें स्टेट मिलेगी या नहीं मिलेगी वी डोंट नो। चाइना देगा या नहीं, नहीं देगा, कभी नहीं देगा चाइना। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन मेड सम बिग स्कैम इन इंडिया एंड देन फ्लेड टू फॉरेन कंट्री and voluntarily acquires citizenship of another country. In this case, his citizenship of India will cancel. Now, if the person has brought back to Indian court for his scam, now as he is citizen of foreign country, then how all the rules and laws will affect him because he made the scam and became citizen of foreign country. स्पंदन, अगर कोई इंसान यहाँ पे स्कैम करके बाहर जा रहा है और बाहर की सिटीजनशिप ले रहा है, इंडिया का सिटीजन नहीं रहा है, और यहाँ पे वापस लाया जा रहा है प्रोसिक्यूट करने के लिए, तो प्रोसिक्यूशन के लिए ऐसा नहीं है कि सिटीजन के लिए प्रोसिक्यूशन के लॉज अलग हैं और नॉन सिटीजन के लिए प्रोसिक्यूशन के लॉज अलग हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉरेन डिग्निटरीज, विजिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट, फॉरेन डिप्लोमैट्स, ये सब इम्यून होते हैं फ्रॉम द रूल ऑफ लॉ। एक नॉर्मल इंसान, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो, अगर उसने इंडिया में क्राइम किया है, ही विल बी सब्जेक्ट टू द इंडियन लॉस। तो चाहे आप जाकर बाहर से ले लीजिए, चाहे आप जाकर बाहर की सिटीजनशिप ले लीजिए, पर आप अगर वापस इंडिया लाए जा रहे हैं, आपको एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इंडियन लॉज विल बी एप्लीकेबल फॉर यू बिकॉज यू हैव कमिटेड अ क्राइम विद इन द इंडियन टेरिटरी इवन इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि लॉज आप पर नहीं लगेंगे, लॉज तो लगेंगे आप पर भी। वो सिर्फ कुछ लोगों को एक इम्यूनिटी दी गई है जो कि सिर्फ विजिटिंग हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं, कुछ हाई डिग्निटरीज हैं या फॉरेन डिप्लोमैट्स हैं। अगर कोई फॉरेन डिप्लोमैट इंडिया में कोई क्राइम करता है तो उनको नहीं प्रोसिक्यूट किया जाता, उनको भेज दिया जाता है उनकी कंट्री वापस। बट एक नॉर्मल इंसान, विजय माल्या जी यहाँ से गए हैं कुछ कर कर, फ्यूजिटिव बन गए हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले लें चाहे, वहाँ के सिटीजनशिप को भी यहाँ लाया जा सकता है बिकॉज दे हैव कमिटेड अ क्राइम हियर। दैट हैपन्स ऑन अ डिफरेंट लेवल वेयर बाय कंट्री टू कंट्री एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस होता है। एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस मतलब एक इंसान को लाना वापस उस ज्यूरिसडिक्शन में जहाँ पे क्राइम हुआ है ताकि वहाँ पे उसके ऊपर केस चल सके, इसे एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। हमारी एक्स्ट्राडिशन की जो प्रोविजंस हैं वो यूके के साथ बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए यूके से कोई वापस नहीं आ पा रहा है। आपको क्यों लगता है कि सभी लोग यूके ही क्यों जाते हैं? ललित मोदी जी भी यूके गए, विजय माल्या जी भी यूके गए। यूएस नहीं पसंद क्या उन्हें? ऑस्ट्रेलिया नहीं पसंद क्या उन्हें? क्यों? बिकॉज यूके लॉज आर सच दैट it is not easy for a person to be extradited to other country if you are a UK person. तो इसीलिए वो यूके जाते हैं क्योंकि लॉज ऐसा मैंडेट करते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेडेक हो जाता है कि उन्हें यूके के पास जाकर कहना पड़ता है प्लीज मेक एक्सेप्शंस फॉर अस, प्लीज अमेंड योर लॉज सो दैट वी कैन टेक हिम बैक एंड प्रोसिक्यूट हिम। क्योंकि वहां पे अगर आप किसी वहां यूके के सिटीजन बन गए तो अब यूके के सिटीजन की एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया इज नॉट सो इजी। उसके लिए अलग एक सिस्टम वर्क करता है जिसमें कंट्री टू कंट्री लेवल कोऑपरेशन की बात होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वी हैव सम बॉडीज, okay, as a part of our syllabus. The bodies can be divided into constitutional bodies and the bodies can be divided into non-constitutional bodies also, okay, non-constitutional or extra constitutional bodies. When it comes to constitutional bodies, we have bodies which are important: Election Commission of India, we have the CAG, we have the Finance Commission, we have the UPSC, we have
NCSC, NCST and NCBC. These are the important constitutional bodies. When it comes to extra constitutional bodies, we have statutory bodies which are formed by a statute, law है जिनके लिए, and we have non statutory bodies जिनके लिए law नहीं है कुछ, but वो भी bodies important हैं. ऐसी भी कुछ bodies exist करती हैं. नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज में बॉडीज आती हैं लाइक नीति आयोग, ठीक है, और स्टैट्यूटरी बॉडीज में आती हैं बॉडीज लाइक NHRC, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये M माइनॉरिटीज है, W वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. उसके बाद कुछ बॉडीज आती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि CBI, जैसे कि CVC. उसके बाद और कौन सी बॉडी है, CIC एंड बॉडीज लाइक लोकपाल. These are statutory bodies, these are non-statutory bodies. This is how we classify different kinds of bodies. Okay. Now, on the basis of the previous questions which are asked by UPSC, you will realize most of the times UPSC has restricted itself to constitutional bodies. There have been very few questions on extra constitutional bodies. I'm not saying that they are not coming, but there have been few questions. For example, there has been questions on NHRC and CBI, primarily because they have been in the news a lot, CBI and NHRC. There have been mains questions from this. Sorry. There have been PT plus mains question from this. Okay. We will cover all the bodies, don't worry. We'll start with the Election Commission. We'll give more emphasis to constitutional bodies, lesser emphasis to extra constitutional, primarily because of the reason that they hold lesser importance. But when it comes to bodies, we have to deal with it in a different manner, because काफ़ी सारी bodies हैं और काफ़ी सारी bodies में काफ़ी सारी factual information है. अब उसको handle करने के लिए, PT के लिए, we need to have some kind of a plan. We'll understand that. उसको हम करेंगे एक तरीके से, क्लास में ही वो तरीका करेंगे, उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ को रिवाइज भी करिए. How? Let's start with ECI. I'll tell you ECI and उसके साथ साथ I'll tell you the plan हमें कैसे करना है. Election Commission of India. Now, Election Commission of India is a very very important body, primarily because of the reason कि Election Commission का काम क्या है, free and fair elections करवाना. ये वर्ड आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऐसा लगेगा कि छोटा सा वर्ड है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये इतना इंपॉर्टेंट है. सिंपल रीजन क्या है, इलेक्शंस फ्री होनी चाहिए, दैट मीन्स आउटसाइड समबडीज इन्फ्लुएंस. फेयर होनी चाहिए, दैट मीन्स अगेन इट शुड नॉट बी that somebody is getting benefit over the other in the conduct of elections. Elections एक बहुत बड़ा और बहुत important event होता है. फेस्टिवल भी कहा है कई बार, फेस्टिवल कहा गया है. Elections are festivals, क्योंकि हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी हैं तो हमारे यहाँ all the more important है. और इसको कंडक्ट कराने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. देखिए, हमने पहले क्या किया है, हमने सरकार स्टेट बनाई. स्टेट बनाकर हमने स्टेट के लिए ये तीन ऑर्गन्स को खड़ा कर दिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, एंड इससे हमारी देश चलने लग गया. गुड. कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा इनके अलावा भी कुछ बॉडीज हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है इन द पॉलिटिकल सिस्टम. जो कैसी बॉडीज हैं, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग और फाइनेंस कमीशन. ये सब बॉडीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इनके बिना भी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है. अब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी अपना काम कर रहे हैं, बट जब इलेक्शन करवानी है,
इसके लिए लेजिस्लेचर में कौन आके बैठेगा? तो मुझे एक बॉडी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो बॉडी है ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि जो भी आकर लेजिस्लेचर में बैठेगा वो एक्चुअली लोगों का प्रतिनिधि होना चाहिए। A person needs to be truly a representative of people and he should come and then sit in the legislature. पर इसके लिए कौन कंडक्ट करेगा इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड बी नेसेसरली इंडिपेंडेंट बॉडी आउटसाइड एनीबॉडीज इन्फ्लुएंस। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, कि ये बॉडी हमेशा इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि जब तक अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगी तो मेरी जो सरकार है वो लेजिटिमेट नहीं होगी। लेजिटिमेट क्या जायज है जो सरकार बैठकर काम कर रही है? वो तभी जायज है अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। ये है हमारे सिटीजन्स। सिटीजन्स को स्टेट का एक ऑर्गन लेजिस्लेचर, इसमें लोगों को भेजना है। बीच में प्रोसेस है इलेक्शंस का, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। अगर ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुई तो यहां से जो सिटीजन्स चाह रहे थे वो लोग तो गए नहीं, अगर इलेक्शन ही रिग्ड है। तो जो सिटीजन चाहते थे वो तो यहां रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। डेमोक्रेसी क्या कहती है? सिटीजन्स पावरफुल है, सिटीजन एम्पावर्ड है, रूल सिटीजन्स करेंगे। करते कैसे हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर। पर अगर इस प्रोसेस में इलेक्शंस ही फेयर नहीं है तो सिटीजन्स तो ये चाह ही नहीं रहे जो यहाँ जाकर बैठे हैं। लेजिस्लेचर से सरकार भी आ गई, तो लेजिस्लेचर भी प्रॉब्लमेटिक है, सरकार भी प्रॉब्लमेटिक है, दोनों जायज़ नहीं है। और तब हम कहते हैं लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। सरकार जायज़ नहीं है, सरकार नाजायज़ है जो बैठकर रूल कर रही है। तब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो बॉडी उसको करवा रही है वो भी तो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो जो बॉडी करवा रही है उस बॉडी में कौन जाकर बैठ रहा है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स। उनकी अपॉइंटमेंट कैसे है? कौन करेगा उनको अपॉइंट? व्हाट इफ फेवरेट्स आर अपॉइंटेड? तो उनकी अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अभी इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं, आगे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं सब में ये एप्लीकेबल होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। इसके लिए मुझे क्या देखना है? हमें एक स्ट्रक्चर कर लेते हैं जो आगे हर जगह लगाएंगे हम। कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस देखनी है, और सवाल इंडिपेंडेंस पे आएगा। किसी भी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस देखनी है तो कैसे देखोगे? इंडिपेंडेंस दिखेगी तीन चीजों से। अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, टर्म्स ऑफ सर्विस क्या है, और तीसरा रिमूवल प्रोसेस क्या है। इन तीनों को देखकर मुझे पता लग जाएगा कोई इंडिपेंडेंट है या नहीं है। नहीं है तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अब इलेक्शन कमीशन के लिए देखते हैं ये तीनों चीजें। व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम एक ऐसा चार्ट बनाएंगे, अपॉइंटमेंट, टर्म्स ऑफ सर्विस एंड रिमूवल। ठीक है, आई एज्यूम कि आप लोग भी मेरे साथ बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंटमेंट कैसे होती है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और नॉट मोर देन 4 इलेक्शन कमिश्नर्स। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, 4 से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं अपॉइंट कर सकते। आज की डेट में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हैं। ठीक है, नाउ प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दिस, just give me 1 minute. Yes, president appoints this as per the constitution. president को अपॉइंट करना है until एक लॉ नहीं बन रहा। किसका? पार्लियामेंट का।
till the time the parliament does not make a law, the president will appoint chief election commissioner and such number of election commissioners as he deems fit. Okay, इनको अपॉइंट कर लिया. अब प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, इसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे किया. मोदी जी ने बताया अपने काउंसिल के साथ, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर दीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनको अपॉइंट कर दीजिए इलेक्शन कमिश्नर्स. फाइन. ये प्रोसेस जो था प्रॉब्लमैटिक था. देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस देखने के लिए अपॉइंटमेंट देखनी है. अपॉइंटमेंट अगर प्रेसिडेंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं. अगर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं मतलब सरकार कर रही है अपॉइंट. सरकार कर रही है तो सरकार फेवरेट्स को भी कर सकती है अपॉइंट. तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या कहते हैं कि अपॉइंटमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट करे. इसके अलावा एक बेटर तरीका ये है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करे बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर नहीं, एक कमेटी के कहने पर, और उस कमेटी में क्या हो, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हो जो सरकार के नहीं हैं. अगर मैं एक ऐसी कमेटी बना दूं जिसमें सरकार के रिप्रेजेंटेटिव पीएम है, ऑपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव ऑपोजिशन के लीडर है, और एक जुडिशरी के भी रिप्रेजेंटेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब ये तीनों मिलकर जिसको अपॉइंट करेंगे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो इंसान कम बायस्ड होगा. पॉसिबिलिटी है, हमें नहीं पता. फाइनली एट द एंड ऑफ द डे कोई बायस्ड है या नहीं है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वी डोंट नो. बट हमारा कोशिश है कि प्रोसेस को जितना अच्छा हो सकता है वैसा बनाएं. तो हम कहते हैं बजाय कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर अपॉइंटमेंट करे, प्रेसिडेंट को कमेटी के कहने पर अपॉइंटमेंट करनी चाहिए. हम ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं फॉर इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट. नाउ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है लास्ट मंथ में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी को रिकमेंडेशन देनी है टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. मार्च 2023 से पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर. मार्च 2023 के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर नहीं, बट इस कमेटी के कहने पर. ये कमेटी नाम रेकमेंड करेगी, उसी को प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर. ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लास्ट मंथ आई है अभी. ठीक है, सॉरी दिस मंथ आई है अभी, मार्च चल रहा है अभी. तो ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से भी. अपॉइंटमेंट, फर्स्ट थिंग, अपॉइंटमेंट चेंज हो चुकी है. प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी. ठीक है. नाउ व्हाट आर द टर्म्स ऑफ सर्विस? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आज की डेट में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. इनकी टर्म्स ऑफ सर्विस क्या है? बोथ इंजॉय द स्टेटस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. स्टेटस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसा है. स्टेटस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब कि इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, इनका जो टेन्योर है, वो सिमिलर है टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ये मतलब है ये 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले होगा उसके लिए अपॉइंट किए जाएंगे. अब आइए रिमूवल. जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका रिमूवल होगा किस तरीके से? रिमूवल लाइक दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका रिमूवल होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाय द प्रेसिडेंट. ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी डिस्कस किया था कुछ दिन पहले. अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कमिटी, they enjoy the status of judge of Supreme Court, in which they will be appointed for a term of 6 years or 65 years. The chief election commissioner can only be removed as that of a judge of Supreme Court. How is a judge of Supreme Court removed? There is a whole procedure whereby special majority is needed. Special majority passed in both the houses. दोनों houses से
रेजोल्यूशन पास होगी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, उसके बाद ही जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव हो सकता है। सिमिलर प्रोसीजर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी होगा। बट ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, जो इलेक्शन कमिश्नर है इनका रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पर हो जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। मतलब कि इनके पास सिक्योरिटी नहीं है टेन्योर की। ही डज नॉट इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इनको कभी भी हटाया जा सकता है, 6 साल से पहले भी हटाया जा सकता है, 65 साल की उम्र से पहले भी हटाया जा सकता है, अगर प्रेसिडेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। ये दोनों की पोजीशन के बीच में एक अनइक्वल स्टेटस एग्जिस्ट करता है, विच इज प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, बट अभी ये ऐसा ही है, इसको ठीक नहीं किया गया है। इससे होता क्या है, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कहीं ना कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। हम ये नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 3 मेंबर बॉडी है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ये कोई भी डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेते हैं? या तो डिसीजन होगा कंसेंसस से, कंसेंसस मतलब तीनों मान जाएंगे, या डिसीजन होगा मेजॉरिटी से। मेजॉरिटी मतलब 2 को मानना पड़ेगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक इलेक्शन कमिश्नर एक साइड है, एक इलेक्शन कमिश्नर दूसरी साइड है, तो भी डिसीजन पास हो जाएगा। अब डिसीजन पास हो जाएगा, कौन से डिसीजन होते हैं? अभी इलेक्शन आने वाली है, ठीक है। आप देखेंगे इलेक्शन के टाइम पर रूलिंग पार्टी जो है उसको ये अधिकार नहीं होता कि वो नई नई स्कीम्स लेकर आ जाए। उनको ये भी अधिकार नहीं होता कि वो कुछ टाइप की ऐसी पब्लिसिटी कर ले जिससे उनको फायदा हो जाए स्टेट का अपरेटस यूज करके। अब बीजेपी है तो पॉलिटिकल पार्टी, और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग सरकार भी चला रहे हैं, तो बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी तो चीजें कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बीजेपी के वो लोग जो सरकार का पार्ट है वो स्टेट चला रहे हैं, अगर स्टेट ऐसी कुछ चीजें ले आती है जिससे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है, जैसे कि मान लीजिए मोदी जी ने कहा कि कुछ टाइम बाद एलपीजी सब्सिडी और बढ़ा दी गई है, और ये कब कहा? इलेक्शन के 1 महीने पहले, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होंगी उसके 1 महीने पहले कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है ये चीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको एडवांटेज मिलेगा ओवर दूसरी पार्टीज। तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी वेलफेयर मेजर्स नहीं ला सकती है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इलेक्शंस, बट अगर वो लाती है तो क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ एक्शन लेता है। एक्शन लेना है, नहीं लेना, कैसा एक्शन लेना है, ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंस आती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की। अगर इलेक्शन कमिश्नर्स को डर है कि मुझे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर निकाल देंगे, विल ही बी एबल टू कम आउट विद हिज ओपिनियन इन अ इंडिपेंडेंट मैनर? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। कब? ये तब की बात है जब कोई डिसीजन लेना है। जब इलेक्शन होती है तब उस टाइम पर पॉलिटिकल स्पीचेस दी जाती हैं। ऐसी पॉलिटिकल स्पीच थी जिसके लिए राहुल गांधी जी को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, 2019 की स्पीच थी। तो इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारी स्पीचेस होती हैं, हर कैंडिडेट देता है। क्या आप किसी भी टाइप की स्पीच दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है। आप हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं, आप रिलीजन के बेस पर अपील नहीं कर सकते हैं वोट्स की, आप कम्युनिटी के बेस पर, कास्ट के बेस पर अपील नहीं कर सकते हैं वोट्स के लिए। अगर आप करेंगे तो वो गलत प्रैक्टिस है। उसके बारे में लिखा हुआ है, आरपीए के एक्ट में लिखा है कि ये करप्ट प्रैक्टिस है या फिर इलेक्टोरल ऑफेंस है। अगर करप्ट प्रैक्टिस है तो भी केस डाला जा सकता है आप पर, अगर इलेक्टोरल ऑफेंस है तो क्रिमिनल केस डाला जा सकता है आप पर। बट केस डालना है या नहीं डालना, कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन में बैठे ये 3 लोग। यहां पर इंपॉर्टेंस आती है इलेक्शन कमिश्नर्स भी कितने इंपॉर्टेंट हैं। और अगर मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव किया जा सकता है इजीली, तो कहीं ना कहीं उनकी इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक एक सिनेरियो एग्जिस्ट करता है, बट अभी एग्जिस्ट यही करता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही लिखा है। इसे अमेंड नहीं किया गया, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी चेंज नहीं किया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया मार्च में,
इसको नहीं चेंज किया, ये ऐसा ही है। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्रॉम पीटी परस्पेक्टिव, एंड ये वैसे इन जनरल याद रखिए। अब हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो डिसीजन आ रहा है तीनों मिल कर लें कंसेंसस से, या एटलीस्ट 2 लोग तो एग्री करें कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो डिसीजंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर डन वाया दिस मेथड, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ we will make this kind of a chart for other bodies also, and I will make another column. This column will be miscellaneous provisions. Miscellaneous provisions में कुछ provisions आएंगी। कैसी provisions? Stay with me. अब देखिए, किसी भी बॉडी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम ये भी कहते हैं कि बॉडी में जो भी मेंबर्स हैं उनको स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाए। मान लीजिए कोई इंसान है जो ऐसी बॉडी को ऑक्यूपाई कर रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर व्हाटएवर बी द केस। उन्होंने 5-6 साल तक अपनी पोजीशन में काम किया, काम करने के बाद वो रिटायर हो गए, 6 ईयर्स या 65 ईयर जो भी पहले आ गया। अब जब वो रिटायर हो गए तो वो क्या करेंगे? घर पे चले जाएंगे अपने। उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास ऑप्शन है घर पे चले जाए, उनके पास ऑप्शन है घर पे ना जाए, कोई और काम कर ले। कोई और काम कर ले में क्या क्या काम कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास सरकार में रहने की एक्सपर्टीज है, तो हो सकता है सरकार उन्हें और कुछ काम दे दे, किसी और ऑफिस का पार्ट बना दे, या सरकार उन्हें किसी कमिटी का मेंबर बना दे, या हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी ही कहे कि आप आ जाइए हमें, क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज बहुत है, आप हमारी मदद कर पाएंगे। इस केस में हम बात करते हैं कुछ प्रोविजंस की। वो प्रोविजंस होती हैं कि क्या जॉब के बाद आपको रीअपॉइंट किया जा सकता है सेम पोस्ट में। सेकंड, क्या आपको एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दिया जा सकता है अंडर द स्टेट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जिस ऑफिस के साथ कुछ पेक्यूनरी गेन, फाइनेंशियल एलिमेंट एडेड हो, या फिर मे बी आप ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी। नाउ लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन वेयर बाय कोई इंसान है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अपनी पोजीशन में है, काम कर रहा है। वहां पर काम करते हुए उसे ये पता है कि मुझे दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है। मान लेते हैं रीअपॉइंटमेंट की प्रोविजन एग्जिस्ट करती है, हमने माना। तो जब मैं 6 साल के लिए काम कर रहा हूं उस पोजीशन में, और मुझे ये भी पता है कि मुझे रीअपॉइंट किया जा सकता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे एक्शंस इस तरीके से होंगे ताकि मुझे दोबारा रीअपॉइंट कर लिया जाए? क्या ऐसा हो सकता है? रीअपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो क्या ऐसा हो सकता है दैट आई विल ट्राई टू रिमेन इन द गुड बुक्स ऑफ दोज पीपल हु विल हैव अ से इन माय अपॉइंटमेंट? तो क्या ये हो सकता है कि मैं जब ऑफिस ऑक्यूपाई किया हुआ है उस टाइम पर कुछ ऐसे एक्शंस करूं जिससे उनको फायदा हो जाए, जिससे कि मुझे रीअपॉइंटमेंट मिल जाए? एजम्पशन क्या है? रीअपॉइंटमेंट ऑफिस के लिए हो सकती है। जब भी रीअपॉइंटमेंट ऑफिस के लिए हो सकती है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका कॉन्डक्ट हो सकता है बायस्ड हो जाए, बिकॉज आपके मन में है कि रीअपॉइंटमेंट होनी है। फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट। अगर मुझे ये पता है कि कंप्लीट करने के बाद मुझे सरकार के अंडर ही कोई काम मिल जाए, घर पे बैठने की बजाय सरकार के अंडर कुछ काम मिल जाए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होता है उसमें, तो मैं क्या करूंगा? हो सकता है मैं उस 6 साल जिसमें मैं पोजीशन में हूं, मैं कुछ ऐसे डिसीजंस दे दूं जो किसी रूलिंग पार्टी के फेवर में है। अब सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे हैं हम, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं, मुझे ये पता है कि अगले नेक्स्ट टर्म में भी बीजेपी ने आना है, तो मैं इस टर्म में भी ऐसे एक्ट करूंगा जिससे कि बीजेपी को फायदा हो जाए।
उससे क्या होगा, हो सकता है मेरा टेन्योर खत्म होने के बाद, क्योंकि मैंने उनकी मदद की अपने टेन्योर में, वो मुझे और नौकरी दे दे खत्म होने के बाद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट। या फिर अब अपनी पोजीशन खत्म होने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उन्होंने कहा आप हमारा साथ दीजिए जब तक आप पोजीशन में हैं, उसके बाद आपको एक काम करेंगे, हम पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। ऐसा हो सकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है इसलिए ये तीनों प्रोविजंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चेक करने के लिए, क्या किसी ऑफिस के साथ रीअपॉइंटमेंट इंक्लूडेड है, क्या किसी ऑफिस के साथ ये इंक्लूडेड है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर द जॉब ले सकता है, और क्या वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है आफ्टर द ऑफिस। मैं एक्सप्लिसिटली लिखता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कैग के केस में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कैग के केस में एक्सप्लिसिटली ये लिखा है कि वो रीअपॉइंट भी नहीं हो सकता और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं ले सकता स्टेट के अंदर। क्यों किया है? ताकि कैग का ऑफिस इंडिपेंडेंट रहे। कोशिश ये है, कोशिश यही रहेगी इंस्टीट्यूशंस के साथ कि उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ऐसी प्रोविजंस डिसअलाउ कर दी जाए, कोशिश ही होगी। बट अब सवाल आता है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ऐसी कोशिश कामयाब है या नहीं है? दिस इज द बिग क्वेश्चन। नाउ व्हाट यू डू इज, I'll answer your this question, but you take down some dictation, write a subheading Election Commission of India quickly. Election Commission of India, subheading लिखिए and write under Article 342, under Article 324, under Article 324 subclause 2, under Article 324 subclause 2, the Election Commission of India shall consist of one chief election commissioner, and such number of election commissioners who may be appointed by the president, from time to time, subject to any law of the parliament. Subject to any law of the parliament. What is the meaning of subject to any law of the parliament? इसका मतलब होता है जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती तब तक प्रेसिडेंट जो हैं वो अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो फिर जैसा वहां लिखा होगा वैसा ही करना होगा। ठीक है, कंटिन्यू। Write in next paragraph, the president has been appointing the chief election commissioner and the election commissioners on the aid and advice of Council of Ministers, full stop, till 1989
the election commission functioned as a single member body. Till 1989, election commission functioned as a single member body consisting of only chief election commissioner. Full stop. In 1989, two election commissioners were appointed. In 1989, two election commissioners were appointed in addition to the chief election commissioner. In 1989, two election commissioners were appointed in addition to the chief election commissioner, but they were not given the same status as that of chief election commissioner. But they were not given the same status as that of chief election commissioner. Full stop. While CEC, Chief Election Commissioner को I'll say CEC, while CEC enjoyed the status of Judge of Supreme Court, while CEC enjoyed the status of Judge of Supreme Court, comma, the two election commissioners enjoyed the status of Judge of High Court. While CEC enjoyed the status of Judge of Supreme Court, the two election commissioners enjoyed the status of Judge of High Court. Next paragraph. In 1991, Parliament passed a law. In 1991, Parliament passed a law. Which was that law? This was the law. In 1991, the Parliament passed a law called as the Election Commission of India, Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business Act. It is written on the board. The Election Commission of India, Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business Act. Act का नाम है, please remember it. In 1991, the Parliament passed this Act. Full stop. As per this, the Election Commission of India became a multi-member body. As per this, the Election Commission of India became a multi-member body having one chief election commissioner and not more than 4 election commissioners. So Constitution कहता है one chief election commission and such number of election commissioners till the time Parliament makes a law. पार्लियामेंट ने लॉ बनाया जिसमें कहा कि अब से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 4 से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो सकते, बट यहाँ पे 1 अपॉइंट होगा, 2 अपॉइंट होगा, 3 अपॉइंट होंगे. दिस इज इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है.
after full stop, right? This act was amended in 1993. This act was amended in 1993, and since then, the Chief Election Commissioner, and since then, the Chief Election Commissioner and the election commissioners enjoy the same status. This act was amended in 1993, and since then, the Chief Election Commissioner and the election commissioners enjoy the same status, which is as that of the judge of Supreme Court. Which is as that of the judge of Supreme Court. Full stop. Further, it was decided that the decisions of the Election Commission of India shall be collectively made either on the basis of consensus. Consensus means all the people who are occupying posts in the Election Commission of India. All the people means one Chief Election Commissioner and जितने भी election commissioners appointed हैं. आज की डेट में 2 हैं, तो one Chief Election Commissioner and 2 election commissioners. Consensus का मतलब तीनों की opinion same है, उससे decision होना चाहिए, या तो ऐसा decision होना चाहिए either by the consensus or by majority principle. Okay. Next paragraph. Both CEC and EC enjoy a term of 6 years. Both CEC and election commissioners enjoy a term of 6 years. Or till they attain the age of 65 years. Whichever is earlier. Next paragraph. Or do one thing in the same paragraph, right? CEC and EC are not eligible for reappointment. CEC and EC are not eligible for reappointment after their tenure. However, an election commissioner may be reappointed as a chief election commissioner. But his total term cannot be greater than 6 years. Meaning,
before I tell you the meaning, write in bracket, this is under conventions and not as per constitution. This is under convention and not as per constitution. Okay. Now, they cannot be reappointed, but this is only under convention. Constitution ने कुछ नहीं कहा है, ठीक है. कन्वेंशनली करते हैं कि नहीं अपॉइंट करते. कल अगर कन्वेंशन तोड़ दी जाए तो इलीगल नहीं होगा, पहली बात, ठीक है. कल अगर सेम इंसान को दोबारा रीअपॉइंट कर दिया जाए तो इलीगल नहीं होगा, क्योंकि लीगल बार नहीं है, कन्वेंशनल बार है. कन्वेंशनल का मतलब काफी टाइम समय से ऐसा चलता आ रहा है और चलता आ रहा है, लॉ में नहीं लिखा है, पहली बात. दूसरी बात, इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट टोटल टर्म मतलब जब वो इलेक्शन कमिश्नर थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, टोटल टर्म फिर भी 6 साल ही रहनी चाहिए. 6 साल या 65 ईयर, जो भी पहले हो जाएगा. तो रीअपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर की तो अलाउड है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट टोटल टर्म शुड बी 6 ईयर्स एंड सब्जेक्ट टू 65 ईयर्स ऑफ एज, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नहीं है रीअपॉइंटमेंट, ठीक है. प्लीज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज राइट. While the CEC enjoys the security of tenure, while the CEC enjoys the security of tenure, as he cannot be removed, except in a manner a judge of Supreme Court is removed, except in a manner a judge of Supreme Court is removed, comma, the election commissioners do not enjoy. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को CEC लिख लीजिए, इलेक्शन कमिश्नर्स को EC लिख लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए. While the election commissioners do not enjoy, underline do not enjoy security of tenure, do not enjoy security of tenure, as they can be removed merely on the recommendation of chief election commissioner, merely on the recommendation of chief election commissioner. Next paragraph. Neither the constitution nor the 1991 act, next paragraph में लिखेंगे, neither the constitution nor the 1991 act nor the conventions prohibit a member of election commission, neither, I'll repeat, neither the constitution nor the 1991 act nor the conventions prohibit a member of election commission from taking up an office of profit, under the state, or joining a political party after the completion of their term. Okay, so
These are the 3 or 4 things which you have to remember with respect to Election Commission of India. Plus, I told you these 3 things. With respect to reappointment, they are not done, but it is only under conventions. Okay, conventions can be broken. The conventions were broken at the time of Indira Gandhi also. Office of profit under the state or joining political party, both of these things are not prohibited to the officers of the Election Commission of India. Fine. Please remember these 2 things. They are important. Now, what you do is, there are problems. There were certain problems. One problem was, appointment was done by the president. This problem has been taken care of by the Supreme Court in March 2023. Very recently the order came, so this is important for examination perspective. Now the remaining problem is, they should also get security of tenure, and the remaining problem is, this should be taken care of. All the 3 things. This is under convention, make it into law. This is not prohibited, make it into law and write it explicitly that it should not be done. Till the time it is not done, we will continue to say that the autonomy of Election Commission of India is only limited. कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपॉइंटमेंट का था, बट दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. फाइन. व्हाट यू डू इज, नेक्स्ट सब हेडिंग जल्दी से लिखिए, recommendations to strengthen the autonomy of Election Commission of India. Recommendations to strengthen the autonomy of Election Commission of India. Right. First point. The election commissioners should also be removed from the office. The election commissioners should also be removed from the office. The election commissioners should also be removed from the office in the same manner as the judge of Supreme Court is removed. I'll repeat, the election commissioners shall be removed from the office in the same manner as the judge of Supreme Court is removed. Second point, the members of Election Commission of India, ECI, the members of Election Commission of India shall be prohibited from joining any political party, for at least 10 years after the retirement. Third point, the members of Election Commission of India shall be prohibited. Third point, the members of Election Commission of India shall be prohibited from taking up an office of profit under the state. Shall be prohibited from taking up an office of profit under the state after the retirement. Fourth point, the administrative expenses of the Election Commission of India, shall be charged on the Consolidated Fund of India. The administrative expenses of the Election Commission of India shall be charged on the Consolidated Fund of India.
What is the meaning of this charged on the Consolidated Fund of India? It means the expenditure for the Election Commission of India should be not required to be voted upon by the Parliament. I assume कि आपने charged expenditure पढ़ लिया होगा. Charged expenditure वो expenditure होता है जिसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती. ये स्पेशल एक्सपेंडिचर होता है जो करना ही करना है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के लिए जो भी एक्सपेंडिचर है उसकी परमिशन हर साल लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से. जब हम 2 बजे कैग या फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे, कैग के ऑफिस के लिए कहा जाता है कोई परमिशन नहीं चाहिए पार्लियामेंट से, आप वहाँ के ऑफिस का खर्चा जितना मर्जी जैसे मर्जी कर सकते हैं. उसे बोला जाता है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर. इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो आस्किंग फॉर द सेम प्रिविलेज वेयर बाय their expenditure should not be subject to the approval of the Parliament. This is the meaning of charged expenditure on the Consolidated Fund of India. As of now, their expenditure is not charged. They are saying our expenditure should be charged on the Consolidated Fund. ठीक है. Next point. The Election Commission of India should be given the power to deregister a political party. Should be given the power to deregister a political party. So we have written 5 or 6 whatever जितनी भी हमने लिखी हैं. इनके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, पॉइंट मत लिखिए, पैराग्राफ लिख लिए. The above recommendations are given by the Election Commission of India to the government. The above recommendations are given by the Election Commission of India to the government. So the Election Commission itself is saying, do all these things. This will make the institution more autonomous, more independent. Unfortunately, इनमें से अभी कुछ भी नहीं हुआ है. ठीक है. You have to remember this. This year, this is a very important topic for PT because it was in the news. Supreme Court has already given a judgment. Supreme Court was talking about this aspect also, but they can't do anything on this. ये legislative का काम है. उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट करेगी. इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? RPA में अमेंडमेंट करनी होती है. RPA एक्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 इज द एक्ट विच टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो वहाँ पे अमेंडमेंट करके आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये पार्लियामेंट का काम है, आई विल नॉट डू इट. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपॉइंटमेंट के ऊपर ऑर्डर दिया है मार्च की जजमेंट में. ठीक है. विद दिस नाउ वी नो दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ बॉडी, what is the appointment, what are the terms of service, what are the removal conditions, what are certain miscellaneous conditions, what are the problems, and with respect to the problems there are certain recommendations also. Okay, this you have to remember. Now after this what we need to understand is one small important thing, a very small discussion on the role of Election Commission of India and how this role has come under scrutiny in the recent times. Scrutiny हुई है काफ़ी ज़्यादा इनके रोल की, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, but we'll do it at 2 o'clock. After discussing this small portion at 2 o'clock, then we are moving on to the second constitutional body, which is the Comptroller and the Auditor General. And we'll try to complete that because that is relatively smaller. And then we'll move on to Finance Commission also today. Okay. Having said this, it's 1 o'clock. You guys can have a break, have your lunch, and we'll meet again at 2 o'clock and we'll continue the discussion. So remaining any doubts will be taken up at 2 o'clock. Okay everyone, let's meet at 2 o'clock.